Good morning, everyone. Thank you for giving me the opportunity to introduce our esteemed guest today, Dr. Ravindranath Tiwari ji. He has very impressive CV. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वो, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है. ही इज द डायरेक्टर ऑफ यशस्वी जियोस्पेशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर टेक्निकल एट NIGMT फाउंडेशन न्यू दिल्ली, South Asia Director of Aquarian Consortium Geospatial Society. He is also holding the position as a Senior Business Development Manager at Henstech Engineering and Technology Private Limited. He is member of expert panel AMIT University UP, member of expert panel IASC University Rajasthan, and member of expert panel CPLU University Haryana. He has written tremendously many good articles and books and published in various journals, which is published by the Springer and Scopus listed. Tiwari ji has several awards also in his name, like Super Trainer Award, then Atal National Award, Employee of the Year, and many more awards he achieved. Then he has 14 years of experience in geospatial technology field, and he is contributing tremendously. He visited, I think, all over India in last few months and delivered his lectures and seminars and webinars. So, with these words, I invite Dr. Tiwari ji, and I'm also saying thank you for coming here for our student and giving you a very good knowledge about this field. Thank you, all respected ma'ams. No man is there. मैम जब ये सारी चीजें मुझे बता रही थी मैं सोच रहा था कैसे हो गया और स्पीड है, बट वो अभी मैं डिस्कस कर रहा था सर से कि बस जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स, और आप अपने कनेक्टिंग डॉट्स और आप ये मत बोलिए जो भी हुआ है जैसा भी हुआ डेफिनेटली आपको काम आएगा, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सो थैंक्स टू शेख भगत सिंह स्टूडेंट्स, थैंक्स टू मैम, थैंक्स अगेन for giving a chance to share the knowledge and experience of our students. Time is नहीं होगा, let's start करते हैं आप लोगों के साथ. Let's how many you belong from geography background? You are first year, second year, final. You are final year geography. Okay. First also. Okay, right. And commerce background से है commerce. Right. And BA programs. Any other जो रह गया हमारे से? कोई और background? BSc Math. BSc Math. Very good. Mathematics. Other और कोई? So mathematicians we have, geographers we have, commerce, right? Commerce background कुछ और से, और कुछ management से? Normal students. Like normally. So, as you know, today we are going to discuss about geospatial technology, how it works, what are the rules, and how it helps for execution of your government projects. How you can choose this in your career, and what are the role and responsibility of geographer. आप ऐसा मत सोचना कि it's just only for geography. I have worked with different departments. मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया जहाँ जीएस को कुछ लेना देना नहीं होता, बट मैं उधर जाके देखा मुझे लगा कमाल में नहीं है, स्पेशली सेंसर्स की केस, राइट? सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेंस नाउ, सब कुछ सेंस हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्ट. आपका पूरा फोन हैक हो चुका है, अगर आप गूगल यूज करते हो, नेट यूज करते हो, इट हैज बीन हैक्ड. आपको कुछ प्राइवेसी रहा नहीं, और आपको क्या चीजें देखना पसंद है, कैसे गाने सुनना पसंद है, सब पता है. सो प्राइवेसी नाम की चीज कुछ रही नहीं अनटिल अनलेस आप फोन यूज नहीं करते. दैट्स गूगल है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, एआई है, मशीन लर्निंग, और अभी जो देख रहा हूं इस टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज, मर्जिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज.
जैसे मैंने कहा कि कार्टोग्राफर पहले भी था, मैप बनाने वाला पहले भी था, और जीपीएस पहले थी, किसी ने मिला के उसको इन्वेस्ट कर दिया और ओला उबेर का बिजनेस तैयार हो गया, और ऐसे बहुत सारे उसके बाद आए और कंटिन्यूसली होता जा रहा है। अभी मैं बात कर रही थी जियो डेटा साइंस, तो जियो डेटा साइंस में बेसिकली जोग्राफर्स और डेटा साइंस, मतलब समझो डेटा साइंस बहुत वेरी बिग थिंग, डेटा साइंस बहुत बड़ा चीज है, और उसमें डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा हैंडलिंग, क्लाउड जीआईएस, वेब जीआईएस बहुत स्ट्रांग चीज है। मतलब एक दो घंटे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, बट हाँ मोटा आइडिया दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं काम कर रहा था स्कूल एनआईसी के साथ, एनआईसी का एक डिपार्टमेंट है स्कूल जीआईएस का प्रोग्राम है, सो वहां पर हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। एक रिसेंट का आपको बता देता हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट, सो अभी 5G सबके पास मेरे ख्याल 5G भी है, राइट? अब इसका एक और वर्जन आने वाला है नेक्स्ट, आई डोंट नो ये पुराने फोन उसमें काम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी वो इस डील पे है कि पुराने सारे फोन बेकार तो नहीं हो जाएंगे। जैसे टेस्ला आने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसका नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं कि सारे ड्राइवर बेकार हो जाएंगे, कंप्लीट ड्राइवर ही खत्म हो जाएंगे, राइट? सो बहुत बड़ा चैलेंज भी है, गडकरी साहब को भी टेंशन में है इसका यूज करेंगे ना करें, और एक तो इतना कॉस्टली है, मुझे नहीं पता सबके पास अवेलेबल हो पाएगा, वो कार के नहीं हो पाएगा। हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा देखा मैंने, एक्सपेरिमेंटल इट वाज सरप्राइज, आपको ड्राइविंग सीखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल बोलो कि अलेक्सा गो दिल्ली टू मुंबई, अलेक्सा स्टार्ट एवरीथिंग। सो सेंसर्स आ चुके हैं, स्कैनर्स आ चुके हैं, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था रेलवे डिपार्टमेंट्स का। सी नाउ यू नो जियोस्पेशियल, you all of know what geospatial? Geospatial means what? If you click on anything, it gives you number of information. If I click on this building, तो मुझे पता लग जाएगा कि C1 शहीद भगत सिंह कॉलेज का रूम नंबर C1 में 150 स्टूडेंट बैठे हुए। So there is two things. First is information, another one is location. Information means यहाँ क्या चल रहा है, and location means कौन सा रूम नंबर है, कौन सा पूरे दिल्ली में कहीं पर एक डॉट लगा दिया गूगल पे। Once you integrate spatial and non-spatial, then it becomes geospatial. और इसका बेनिफिट इतना ज्यादा है, you can't believe. जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी AI हो रहा है, जो भी मशीन लर्निंग हो रहा है, वो सब में इसका इस्तेमाल completely. See, अभी आपको गूगल पे once you go any location from here to there, it show यहाँ red line, green line, blue line, dark gray आता है ना आपके नेविगेशन टूल में। How it comes? क्योंकि आपका नेट चालू है और आप मूव कर रहे हो, तो सिंपल दिखाता है वो। अभी कॉमन हो गया है, और आज से 10 साल पहले, शायद 15 साल पहले कॉमन नहीं था, इतना कॉमन अभी हो गया, अभी और बहुत कुछ होने वाला है वेरी सून। हम लोग अभी काम कर रहे थे एक्सीडेंट पे, अभी तो ठीक है, ये टाइम है जब फॉग होता है, हाईवे पे जब एक्सीडेंट होते हैं मैक्सिमम। ये हम लोग अभी हरियाणा जाते समय पहुंचा लोकेशन है, वहां पर एक कार स्टक करी है, और क्योंकि फॉग था वो ज्यादा दिख नहीं रहा था, स्पीड, और हरियाणा सरकार की गाड़ी बहुत फुल स्पीड में चलती है, जो हरियाणा का ड्राइवर कमाल का ड्राइवर होता है, तो एक के बाद वो, और हम बचे इस तरीके से कि हम निकलो वहां से, अदरवाइज दूसरा कोई आएगा। इट वाज वेरी डेंजरस, मुझे याद आ गया उसी। तो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा बात किया, तो नाउ दे आर सेइंग दैट कि नाउ वी आर, जैसे लाइट पोल लगे हैं रोड के किनारे, बिजली के खंभे लगे हैं, सेम अभी एक सेंसर लगा एंड इट विल सेंस योर साउंड। डिफरेंट जो कोलैप्स होता है, एक्सीडेंट में साउंड निकलता है, उसको स्टोर किया जाता है, और उसको मशीन के अंदर डाल के मशीन लर्निंग की जाएगी, और वो देखा जाए कि एक्सीडेंट में कैसे कैसे साउंड निकल सकता है, ट्रक का कार से, कार का कार से, बाइक का कार से, बाइक का बाइक से, इस टाइप का साउंड का इंजीनियरिंग हो रहा है। And after sound engineering, they are doing the thousands and thousands of algorithm on sensor. जरा से भी अगर स्टेप हुआ, तो 2 किलोमीटर पहले वहाँ वो बताता है कि जस्ट 2 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रखा काफी लोगों ने, तो शायद लाइफ को सेव किया जा सके। अभी गडकरी जी का आपने सुन लिया प्लान, ये सारे हाईवे रखने वाले हैं, जिससे हाईवे सफर में हाईवे सॉरी टोल टैक्स जो मजा होता है ऑफ करना, बहुत सारी नौकरियां वो अभी देख रहे हैं कि लगेगा ही नहीं लगेगा। सो ये these all things are going to be implemented very fast,
The time is what you have to improve your skills. आपको थोड़ा सा एकेडमिक्स से निकल के बाहर आना पड़ा है. एकेडमिक्स इज वेरी गुड. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में बैठा हूँ और मुझे नहीं लगता 95 से नीचे किसी का परसेंटेज होगा. 97 कट ऑफ कितना था? अच्छा इंटरेस्ट तब भी 90. तो 90 स्टूडेंट 90% स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे आप? सब पढ़ लेगा घर में. हमारे सर मैम के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो शेयर कर लेती है आपको. नॉलेज आपको कहीं नहीं, एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ सिलेबस यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा. बट नॉर्मल जो छोटी मोटी चीज है तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो यू अपडेट योरसेल्फ इन डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स. इसमें से एक है जैसे लाइडा, जैसे ड्रोन, जैसे एआई मशीन लर्निंग, जैसे डेटा साइंस. थोड़ा सा आप इधर आओ और ये बिल्कुल मैं सोचो मैं ज्योग्राफर हूँ या आर्ट बैकग्राउंड हूँ या कॉमर्स हो तो मेरे से क्या लेना देना डेटा साइंस, ऐसा कुछ नहीं. इट्स नथिंग लाइक दैट. इफ यू स्किल योरसेल्फ इन दैट डोमेन डेफिनेटली. और एक बहुत अच्छी चीज है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नॉर्मली आपको स्टार्ट कर देता हूं सेशन को, आपको दिखाता जाऊंगा वन बाय वन व्हाट हैपेंड. See, it's very good technology that comes under GPR. ये टूल था जिससे करप्शन को बढ़ाएगा. फाइनेंस डिपार्टमेंट का करप्शन था बेसिकली, और सर्वे की टीम का कुछ करप्शन था, और कुछ प्लानिंग की कंपनियां थी जो इंजीनियर बीटेक नॉर्मल सिविल स्टूडेंट होते हैं जिनका काम था. बेसिकली यहाँ पे फाइव आपने देखा होगा आजकल रोड के किनारे मोटे मोटे वायर बिछाए जा रहे हैं, काफी मोटे मोटे वायर, येलो कलर की, ग्रीन कलर की बिछाए जा रही है, राइट. सो अभी इससे आपका इंटरनेट भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इसी वजह से संभव है. तो करीबन अभी योगी जी का प्लान था कि करीबन जो 32 लीनियर किलोमीटर में ये वायर बिछाने हैं. सो एक एरिया है नागल रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया, हमें 50 किलोमीटर के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, 50 किलोमीटर का. सो आई यूज्ड टू फाइंड आउट, आई नीड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द कंपनीज जो एग्जिस्टिंग अंडर केबल है उसका लॉस न हो और हमारी नई केबल बिक जाए. अदरवाइज जेसीबी वाले क्या करते हैं, जेसीबी वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता. जेसीबी वाले को मतलब उसको मतलब होता है कि बताओ कहाँ क्या करना है, वो ठीक करके निकल जाता है. राइट राइट, उसमें ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है उसको. बट वी हैव गिवन सॉल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सर आप इसमें जीपीआर एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इतना आप उसको मूव करो जाओ अंडरग्राउंड अप्रॉक्स 5 मीटर्स क्या है जमीन के अंदर पता दें, स्ट्रक्चर्स टाइप का कुछ चीज निकल के आता है. और जब हम जेसीबी वालों को ये बताया कि 5 मीटर पर है या 2 मीटर पर है या 3 फीट पर है 1.5 फीट पर, उस हिसाब से वो उसको इतना प्रेशर देता है मशीन. तो वो चीज अब इसमें आप देखो शायद 2.9 2.3 1. देख रहे हैं आपके यहाँ पे इसका विड्थ है. इन सबकी ज्योग्राफी के ऊपर हम कुछ सबकी गूगल के साथ मैपिंग दी गई है कि एग्जिस्टिंग पोल्स, एग्जिस्टिंग वायर्स, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स कितना अंडरग्राउंड है. एंड देन ये डेटा हमने जेसीबी चलाने वाले को दिया. सिंपल, जेसीबी को बोला आप आई थिंक हैव यू यूज्ड केबल-फाइड इन योर मोबाइल फोन? नहीं यूज किया आपने. नॉर्मल होता है केबल फाइल, आप बना सकते हो अपने कैंपस में बना सकते हो केबल फाइल.
It's very simple. You get from the केबल फाइल अपने फोन पे डालो और आपको फोन खुद बताएगा कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, आप वहां जाओ, उस हिसाब से उतना टिक करो और देख लो। तो इसमें करप्शन क्या पड़ा? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जो टारगेट दिया गया था उनको ये बोला था एटलीस्ट 9 फीट, सॉरी 5 फीट, अप्रॉक्स 5 फीट आप डिग करोगे और वायर बिछाओगे, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जब सर्वे किया तो पता, अच्छा एक चीज और, ये देखने के लिए कोई इंजीनियर गड्ढा करके नहीं देखता, नॉर्मल डिग करके नहीं देखता कितना गहरा हुआ है, और करेगा तो कितना करेगा, 1 2 4 10 20 50 150 किलोमीटर कहाँ चेक करेगा, नहीं करेगा और पैसा लेके निकल गया, हो भी गया। ये केस था करीबन 20 के आसपास का। 4 साल बाद जब किसी नहीं 20 की बहुत पुराना है, बीएसएनएल का एग्जिस्टिंग है, बीएसएनएल अभी बंद हो गया, चल रहा है, अभी नया आया फिर से शायद इंप्रूव किया उसको गवर्नमेंट ने। तो बीएसएनएल के टाइम का केस था, बीएसएनएल की वायर बिछाई गई थी, बीएसएनएल के बाद फिर और क्या क्या है, एमटीएनएल और क्या क्या बहुत सारी चीजें आई, अभी नया आया जियो का, रिलायंस जियो, तो ये लोग उसको पूरा कवर कर रहे हैं, उनका वायर बिछाना था, तो उन्होंने बीएसएनएल की उन कंपनियों को नोटिस दिया हुआ है, उन्होंने कहा सर क्या तो 10 साल हो गए, 10 साल बाद क्या बताऊं आपको हमने क्या किया था। You got my point what I'm saying? Now अगर आप कोई किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, किसी जगह जॉब करने जाते हैं, तो ऐसी टूल्स का, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज निकाल के डिपार्टमेंट को इंप्रेस कर सकते हो। सर आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। चाहे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे आप बैंकिंग में जाएं, चाहे आप बिजनेस में जाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत, बिजनेस के लिए हमने मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है, स्पेशली मैनेजमेंट क्या, ये जो एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड डील करते हैं, उसके लिए सारा ज्योग्राफिकल डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। आप जीआईएस में एक चीज होती है साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस, शायद आप लोग पढ़े होंगे। साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस में सुटेबल लोकेशन फॉर एटीएम, बैंक, मदर डेयरी, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, इन सब की सुटेबल लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स यूज करते हैं, डिमांड, गैप, सप्लाई, ये ना एग्जिस्टिंग, वो सारा मैप किया एंड देन प्रोवाइडेड सॉल्यूशन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, करके मैं दिखाता हूं शायद आप समझ पाओ। एक बात मेरा फेवरेट है, अलग-अलग चीज बताता हूं। लेटेस्ट जो हो रहा है, अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत कैसे अगले कुछ वर्षों में ड्रोन्स का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, और इस ड्रोन मूवमेंट का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ड्रोन उड़ाकर दिखाया, और इस दौरान उन्होंने भी ये कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन शक्ति बनने के लिए अब तैयार है। इस कार्यक्रम में उन्होंने ड्रोन से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ड्रोन्स कैसे सुशासन और सरकारी कामों की स्पीड बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का सुपरविजन अब ड्रोन्स के जरिए करते हैं। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलरली मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी, तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता हूं। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है, और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो बता रहे हैं किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, because we did that kind of task. You want to see how we got that kind of information? See,
ये बहुत मेरा फेवरेट इसलिए भी रहा है कि मेरा पीएचडी इसी में हुआ इसी प्रोजेक्ट आगे that is the work which has been allotted around Delhi Soda Delhi Vadodara Expressway केवल 12 पैकेज के इसके अंदर 12 पैकेज पैकेज बोल रहे चैलेंज बोल सकते हैं आपको 12 चैलेंज था ये दौसा था राजस्थान में एक जगह दौसा तो लास्ट सेंटर हमारा वो था जहां हमें छोटे छोटे ब्रेकेज में काम करते थे इस एरिया प्रॉब्लम ये था कि इसका जो एक्चुअल कॉस्ट था वो अप्रॉक्स 60% अमाउंट जा चुका था कॉन्ट्रैक्टर्स को जैसा ट्रेडिशनल होता है 60% अमाउंट लेने के बाद जब गडकरी साहब ने बोला मेरा 60% पैसा जा चुका है इस प्रोजेक्ट में मुझे स्टेटस बताओ कि क्या हुआ मतलब मुझे गवर्नमेंट अगर फंड देती है तो उसकी भी तरह कुछ किया और जो खर्च किया उसका प्रोग्रेस दिखाओ तो दैट वाज द प्रोग्रेस दे वर सरप्राइज्ड ये 60% काम है उसके बाद जैसे आप बैठे हैं सेम सारे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर बुलाने के बाद मिनिस्ट्री के लोग बैठे और एक एक करके वन बाय वन बुलाया गया जैसे यहाँ पर चैलेंज नंबर 5059 एक बार एक इधर 6 + 350 ठीक है अभी नीचे फिर आया चैलेंज नंबर देखें यहाँ पे चैलेंज नंबर क्या लिखा है 9 + 880 तो 9 प्लस का मतलब जहां से हाईवे स्टार्ट हुआ वहां से 9 किलोमीटर प्लस 880 मीटर पे क्या सीन है और इसको हम लोग बोलते हैं जनरली हम लोग उसको बोलते हैं लॉग फाइल लॉग फाइल जैसे कार में होता है जैसे ड्रोन में होता है कब गया कितना देर उड़ा किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे उड़ा कहां पर पहुंचा उसको लॉग फाइल बोलते हैं लॉग फाइल से निकल जाता है कितना दूर आगे पहुंच जा चुका है तो ये बोला गया चैलेंज नंबर 9 + 880 किस कॉन्ट्रैक्टर के हिस्से में हाथ खड़ा करें कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हो गया उससे पूछा कितना पैसा ले लिया उससे मतलब 70% उसको बोला काम क्या है तुम्हारा तो पहले क्या होता था पहले इंजीनियर स्लाइड्स में प्रेजेंटेशंस में एक्सेल्स में बहुत बड़ा जैसे गवर्नमेंट कोई सीनियर अधिकारी आने वाला होता है कोई पॉलिटिशियन आने वाला होता है रोड के किनारे बड़े बोर्डिंग लगा देते हैं ताकि किसी का कुछ समझ ना आए लोग राइट ऐसा है तो वो ऐसा करते थे बट आपको सब बंद उनका रहने दो कोई जरूरत नहीं आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन आप चुपचाप टाइम पे डिलीवर कर दो अदरवाइज जो पैसा आपने आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है 5 साल के लिए आपको कोई भी सरकारी टेंडर नहीं मिलेगा और जितना पैसा लिया है जो अच्छा काम कर रहा है उसको चुपचाप ट्रांसफर कर दो दैट इज द रीजन इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे फास्ट अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क काम कर रहा है रोड एनएचआई काम कर रहा है क्यों क्योंकि मॉनिटरिंग टूल्स अब इसमें ये मत सोच रहे कि इसमें ज्योग्राफर का क्या रोल है इसमें सर्वेयर का क्या रोल है इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारा जो ये पेन ड्राइव के साथ जो डेटा जाता था फाइनेंस को भी जाता था अगर मिनिस्टर बोल रहा है पैसे अलॉट कर दो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता भी कि अगर मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि पैसे दो तो पहले देखूंगा उसके बाद फंड रिलीज करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा अदरवाइज इस तरह के केस में जब फ्रॉड वाला केस होता है तो पूरा डिपार्टमेंट फंसता है तुम क्या कर रहे थे जब नीचे से पैसे जा रहे थे तुम्हें तो देखना चाहिए था तो इसमें बिजनेस भी आया है बिजनेस डिपार्टमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी आया हुआ है इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट भी आया हुआ है इसमें मैपिंग सर्वे डिपार्टमेंट भी है सर्वे का भी काम होता है तो दे ऑल आर यूजिंग दीस ऑल थिंग्स उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल डिपार्टमेंट के यूज होना चालू हो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप में से अगर किसी को ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना है यू कैन कांटेक्ट आपको मिल जाएगा बहुत इजी जैसे और मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा हूँ आगे आने वाले 10 सालों में बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपके हाथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए जैसे आपके हाथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था कितने मिलियन रुपीस फंड मिल चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अब नाउ गोइंग टू वो पैसा उनको खर्च करना है उनको रिस्पांसिबिलिटी देनी है तो हेल्थ वालों के पास जा रहे हैं हॉस्पिटल्स वालों के पास जा रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट के पास हेल्थ वालों के पास क्या बोल रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जितने भी बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर्स हैं पीजीआईज हैं या हॉस्पिटल्स हैं जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी आदमी को वेदांता जाना है उसका किडनी XYZ कुछ प्रॉब्लम हो गया या फॉर एग्जांपल इमरजेंसी केस की बात कर रहा हूँ जो लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं
तो किसी की जब डेथ हो जाती है तो बॉडी 1 घंटे तक शायद उसके ऑर्गन काम करते हैं, राइट और रॉन्ग? तो मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ। इसी अगर उसके बाद तो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है उसका पूरा बॉडी, फिर काम करना बंद कर देता है। तो 1 घंटे के अंदर ब्लड पहुंचाना है वेदांता। अब वेदांता कहाँ है? अगर हम नॉर्मल कार से या टैक्सी से अगर अपनी कार से भी जाए तो कम से कम 2 घंटे आराम से लग जाएगा वेदांता पहुंचने में। बट अगर हमने उसको ड्रोन के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करी तो ड्रोन हमारा 120 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, मिनिमम स्पीड बोल रहा हूँ, दिस इज मिनिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की स्पीड से भी गया तो भी आराम से पहुंच जाएगा 40-50 मिनट बहुत इजीली। अब हमारा एक बंदा हमारा फ्लायर ऑलरेडी है, लेकिन वो जो फ्लाई करेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अभी एटीसी से बात चल रही थी, एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वो लोग बोलते हैं कि कॉरिडोर बनाया जाए, जैसे मेट्रो का कॉरिडोर है, ऐसे इसका कॉरिडोर बनाया जाए जिसका हाइट एयरप्लेन के हाइट से थोड़ा सा कम रखे, ताकि हमारे यहाँ तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज न्यू सेक्टर फॉर यू। बहुत कम लोग हैं, आप भीड़ से अलग हो जाओ। अगर आपको सच में थोड़ा सा अपने आप को सेटल करना है इंडस्ट्री में तो क्राउड से अलग सोचो। इधर लोग नहीं सोचते, इधर इंजीनियर सोचता है, ज्योग्राफर नहीं सोचता है, जो कॉमर्स वाला नहीं। और आज का तो ऐसा टाइम है जो मैं देख पा रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता आपकी जो चीज बैकग्राउंड से हो, मैटर ये करता है आपको आता क्या है और आप कर क्या लेते हो। इतने यंग लोग, अभी मैं मिनिस्ट्री में था, स्टूडेंट है मेरी बेटी, वो काम कर रही थी मिनिस्ट्री में, वो करीबन आज के टाइम पे 80-90 हजार रुपए सैलरी उठा रही है, बिल्कुल यंग है, अभी पास आउट करी उसने नर्सिंग। और उसने एक ऐसा प्रपोजल बनाया, प्रपोजल क्या था, मतलब अच्छा काम था वो। उसने ये बोला, अगर मेरे पास कुछ है डेटा तो मैं आपको दिखा सकता था, पूरे इंडिया में जो बेसिन्स है, बेसिन्स मतलब यू नो बेसिन, राइट? तो छोटी बेसिन जब बड़ी बेसिन में मिलता है, जैसे बेसिन हमारे आपका जो फ्लश का पानी आपके घर जहाँ शैम्पू से नहाते हैं, वो केमिकल धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है, राइट? और उसके बाद वो दिल्ली के किसी उसको मिल जाता है। दिल्ली में कौन सी नदी है? तो आपके घर का पानी जाता है उधर सिरप से होते हुए। सो नाउ दे आर सेइंग टोटल कितनी बेसिन्स है और उस बेसिन्स के किनारे कितनी सिटी है उसकी मैपिंग करो। सिटी की मैपिंग करने के बाद देखो कितने लाख कितने मीट्रिक टन वाटर, सीवरेज वाटर वहां से निकलता है। अब निकलने के बाद वो उसमें मिलता है, सीवर में मिलता है। देन वहां के कलेक्टर को इंफॉर्मेशन दी गई कि उसको मिलाने से उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो पानी को वहां मिलने से पहले उसका सारा कचरा साफ कर दिया जाए, देन वहां मिलाया जाए। तो कितने हैं, किस लोकेशंस पे है, कहां पर एग्जिस्टिंग है, कहां पर नया बनाया जा सकता है, उसकी पूरी प्लानिंग। एक सिटी पकड़ लो, एक इमेज एक स्टेट पकड़ लो। अब तो सारे ज्योग्राफर्स हैं जो मास्टर्स हो गए, तो थोड़ा और बात कर सकता था, जिनको प्रोजेक्ट बनाना है, जिनको रिपोर्ट बनाना है। या आप लोग अपनी आप अपनी पीएचडी में भी देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट को बता सकते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के लिए बेसिस का प्लान बनाइए, और प्लान बनाए कि आगे इतना अच्छा रिपोर्ट हो। तो उसके साथ पीएचडी में 2 तरीके का एनालिसिस होता है, एक सॉल्यूशन होता है। पीएचडी में एक एनालिसिस सिर्फ करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, तो सॉल्यूशन भी दीजिए उसको। सर इतने लोकेशंस है, इतने रिवर है, इतना बेसिन है, इतने सिटी है, यहाँ और इस काम को करने के बाद वो सीधा मिनिस्ट्री में सिलेक्ट हुई। आपने शायद नाम सुना होगा, नमामि गंगे एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लीन वाटर मिशन जो उसी के अंदर आता है। डॉक्टर पीयूष गुप्ता है वहाँ पे, जो इस पूरे को हेड करते हैं, अकेला जीएस डिपार्टमेंट, वो वहाँ देखते हैं। तो वहाँ हमने एक स्टूडेंट अपने भेजे, तो सी इज वर्किंग ऑन दैट। तो ये सारा चीज टाइम का मतलब दिखाने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और फास्ट 2-4 पीसेस से जल्दी बता दूंगा। सो उन लोग पूरा प्लान बनाया, उसके बाद उनको केमिकल इंजीनियर ढूंढे, उनको केमिस्ट चाहिए थे, क्योंकि कचरा डिसॉल्व करना है उनको। फिर वो केमिस्ट इतने एक्सपर्ट थे, कचरे से कुछ बना लिया। तो जो गार्बेज होता है, उस गार्बेज को आजकल आया सिस्टम, रिसाइकल, रीयूज और क्या-क्या बहुत सारा सिस्टम आया हुआ है। तो उनको एक्सपर्ट को बुलाया, तो उन्होंने सोल्यूशन बताया, सर एक बार कचरा इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो, उसको फिर से यूज में ले लो, पानी भी साफ हो जाएगा, कुछ नया प्रोडक्ट निकल जाएगा। और किसी कंट्री में शायद अप्लाई हो भी चुका, उसका फिर सब कुछ बनाया नहीं जाता। इंडिया में शायद मुझे नहीं पता स्टार्ट अप्लाई नहीं। तो कैसे आइडियाज आ रहे हैं लोगों से, बट उसके लिए जो बेसिक डेटा तैयार होता है वो जीआईएस में प्रॉब्लम है। और जीआईएस बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो बहुत कुछ जीआईएस आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। थोड़ा केस स्टडी में दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सर्वे। इस बार इको साउंड देख रहे हैं, मैं उड़ीसा में था 2 दिनों पहले, तो वहाँ एक लोग काम कर रहे हैं दोस्तों इस सेक्टर में।
ये गया नदी के आसपास का एरिया है, उड़ीसा में मिलती है समुद्र में जाके, देखा है आपने? ये कुछ लास्ट एरिया है, उसके बाद बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। मिल जाएगा यहाँ पे उसके बाद ये सारा नदी में मिलता है, और इधर नहीं दया यहाँ पे तो दया रिवर से एसोसिएटेड जितनी विलेज हैं इन्हीं का पानी वहां जाएगा बेसिकली। और उसमें मेजर सिटी मेट्रो सिटीज कितनी है या मेजर सिटी जहाँ की आबादी कम से कम 1 CR के आसपास है, 1 करोड़ की आबादी तक के जहाँ मेजर सिटीज है उसका पूरा मॉडल बना है। और इट्स वेरी सिंपल, सी हियर देखो डेटा बनाना बहुत आसान है, एरिया वाइज नहीं है, सी वेरी सिंपल। इसका नाम है जो भी है सी अगर काउंट कौन सी रिवर के बगल में कौन सा सिटी है, फिर कुछ और डेटा गूगल से उठा के आप इसके अंदर डाल दो कितना पीडब्ल्यूडी के पास सारे आंकड़े रहते हैं कि इस शहर से कितना गंदा पानी निकलता है, फिर उस कितना पानी को कितना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो काम था जो मैंने वीडियो दिखाया था ये वही था। इसमें बारिश में क्या होता है, बहुत सारा मलबा निकल के आता है, उसको डिपॉजिट हो जाता है रिवर, राइट। और उसके बाद शायद रीजन की रिवर शिफ्ट भी होती है, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती है। अगर आप ये कंटिन्यूअस मतलब उसमें हटता रहे तो चेंज होता रहता है। मैं राइट और रॉन्ग? मैं फरुखाबाद में था, वहां पर एक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के डायरेक्टर थे, चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो बेसिकली। सीडो 2 होते हैं, रूरल डेवलपमेंट का होता है, अर्बन डेवलपमेंट। पहली बात अर्बन डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला सर हमारा जो ऑफिस था जहां हम लोग सर्वे करने गए तो बताया गंगा पहले हमारे यहाँ से बहती थी, अब उनका हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चले गए। जब वहां जाके देखा तो इसी टाइप का कचरा जमा था सेम। तो अगर हम इसको वहां उस तरीके की मटेरियल्स को अगर स्टॉप कर देते हैं तो शायद उसका लाइफ भी वहां बचा रहे, आगे दूर शिफ्ट ना हो। इस टाइप का एनालिसिस भी इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न एनालिसिस। जैसे हम लोग उसको बोलते हैं पैटर्न, कैसे रिवर अपना पैटर्न चेंज कर रही है, कैसे शिफ्ट हो रही है अलॉन्ग लास्ट 50 साल में, 150 साल में या 70 ईयर में कितना शिफ्ट हुआ है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट था ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, कोविड प्लान। वार रूम में काम किया था हम लोगों ने इसके साथ। वो 90 डेज इतने डेंजरस थे, मतलब इंडिया का पूरा वर्ल्ड ही परेशान था, लेकिन इंडिया में 90 डेज का लॉकडाउन था। ऐसे था शायद 80 डेज थे, 90 डेज इतने दिन लॉकडाउन, और पूरे न्यूज चल रहा था, घर चले गए लोग, लौट के नहीं आए, कुछ लोग पैसे गए जो आज तक नहीं आए, सब खाली होकर निकल रहे थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वो तो अच्छा हुआ ये दैविक आपदा, क्या कौन सी आपदा? हाँ दैविक आपदा जो ऐसा लोग बोला, वैसे दैविक है नहीं, फैलाया तो हमने, क्योंकि हमने अपनी सारी डिटेल उसके अंदर भरी नहीं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मिला था, उसमें भी हम गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था। कोई आदमी 1.5 लाख वायरस लेकर घूम रहा है, कोई 10,000, कोई 5,000,
कितने वायरस उसके बॉडी में थे, उसका इम्यूनिटी अच्छा था, उसको हम खेल गया। अदरवाइज हमने उसको भी मॉनिटर किया थ्रू ड्रोन्स। सी इसमें भी बहुत बहुत केस आए। सी अभी दिखा देता हूं। जहाँ ये बोला गया कि आपको यहाँ रुकना है, क्वारंटाइन जोन बहुत सारे बनाए गए थे जहाँ पर ये केसेस मिलते थे। तो पहले तो सरकारी बिल्डिंग ले ली गई, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जहाँ पर स्टोर, जहाँ लोग रखा जाए, और ये सारे वायरस लेके घूम रहे थे। अब इनको खुद नहीं पता था कि इनके पास वायरस कम है, अगर पड़ोसी के पास है, उसके पास ज्यादा वायरस है तो मैं नहीं रखूंगा। कुछ बच गए, कुछ चले गए, ये मान नहीं रहे थे, तो फिर उनको ट्राई किया गया। अब वायरस ऐसी चीज होती है जिसको काउंटर नहीं कर सकते। अगर ये बता दे कि तुम्हारे पास माइंड थोड़ा वायरस है तो बच सकते हो। किसी बड़े ऐसे आदमी के पास लेके चले गए तो पूरा जहाज लेके आ रहा है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए हमने इस तरह के कुछ प्लान यूज किए थे। ये पूरी उस समय वेबसाइट पे आ रहा, न्यूज में आ रहा था, आज 1500 मर गए, आज 4000 मर गए, है ना। और थोड़ी सी खुशी होती जब ये बोलता आज 400 डिस्चार्ज हो गए। तो कितने डिस्चार्ज हुए, कितने एडमिट हुए, कितने बेड खाली, सारी मैपिंग वार्ड वाइज, वार्ड लेवल पे काम किया था। इसमें उस समय कोई नहीं देख रहा था कि जोग्राफर आएगा, ये प्लानर आएगा, या आर्किटेक्ट आएगा, या इंजीनियर आएगा, कॉमर्स आएगा। इसको सिर्फ ये देखा जाता था कि नामों के इकट्ठा कौन करेगा और एक साथ रख के। अब आप देखें यहाँ पे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी, रोज कमाने खाने वाले लोग जो दिल्ली छोड़ के भाग गए, और कुछ ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग थे, बीपीएल के लोग थे, जिनको राशन मिलता था महीने का, वहां से दुकान होती थी, हाँ सब कार्ड होल्डर, वो दुकानें भी बंद थी। तो उनको टाइमिंग, उनको बाद में स्पीकर ड्रोन्स यूज किए गए, और स्पीकर ड्रोन से उनको बताया गया कि आप इस टाइम पे इस लोकेशन पे पहुंचे, आपको खाने का सामान वहां पे मिलेगा। वो स्पीकर ड्रोन्स बहुत काम के थे, अदरवाइज वहां भी शाहीन बाग जैसा घटना था, डॉक्टरों को लोग पत्थर मार रहे थे, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, सुना होगा साथ न्यूज़ में, आपने सुना है, अपने आंखों से देखा। These are the speaker drones। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, तो बता रहे थे इस डेट पे, इस टाइम पर, इस लोकेशन पर जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं पहुंचे, अपना सामान ले रहा है। क्योंकि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद लोगों का पैसा खत्म हो गया। तो कुछ अन्य क्या बोलते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट उनको फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे, तो अदरवाइज बहुत चीजें खराब हो रही थी, तो यहाँ से ट्रैक किया गया। फिर कोविड बंद हुआ तो और भी बहुत सारी चीजें निकल के आई। कोविड के ठीक बाद बहुत सारी चीजें और, वो क्या नाम उसका, विवेक, जिसको मार दिया था उन्होंने, कौन सी विवेक किया था उसका नाम, किधर वाले में जाना, देखो आगे, ये था वो हॉटस्पॉट जहाँ पे उसको मारा गया था इस जगह पे। और जो पत्थर मारे जा रहे थे वही पत्थर के टुकड़े उसकी छत पे मिले जिसमें देश का झंडा लगा रखा है अपनी छत पे, जो रेंटेड बनने की कोशिश। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी किसी सब्जेक्ट का गुलाम नहीं है, उसको कोई मैटर नहीं करता कि तुम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हें यूज करना आता है, क्या तुम उसको किसी काम में यूज कर सकते हो सोसाइटी के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो, डेफिनेटली आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया सा रिपोर्ट बनाओ, अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करो और डिपार्टमेंट में सीधा चले जाओ और बोलो सर ये नहीं कर सकता। मैंने ऐसा करवाया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। केजरीवाल की जब सरकार थी उस टाइम पे, ठीक, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली एयरपोर्ट में लोग बोल रहे थे ट्रक माफिया। ट्रक माफिया मतलब जो पानी सप्लाई गलत जगह करते हैं, पीने का पानी मतलब सरकार का पानी, सरकार का ट्रक, सरकार का पेट्रोल, ड्राइवर भी सरकार का, और वो पानी जा रहा था बिल्डर्स को या किसी ऐसी जगह जा रहा था जहाँ उनको फायदा होगा। तो उनको ट्रैक करना प्रॉपर, कितने बजे निकला, कहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस था, कहाँ डिलीवर किया, सारा डेटा एंटर कर दिया। तो जीपीएस का एंगेज करवाया
और फिर उसके बाद उसका प्लान किस तरीके से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत माइन्यूट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो आपके घर में जो पानी की टंकी लगी है उसमें कितने लीटर की है, कितने लीटर की है? 1000 लीटर पानी की टंकी सब कुछ लगती है। 500 लीटर सबसे छोटी होती है, इससे ज्यादा होता है। अब आपके घर में 4 लोग हैं, 3 लोग, आई डोंट नो, सो क्या आप उसको डेली फिल करते हो या अल्टरनेटिव करते हो? ज्यादा लोग है तो डेली फिल होगा, कम है तो हो सकता है एक दिन बाद फिल करो, राइट? अब वो जो टैंकर वहां से आया है 20,000 लीटर पानी लेके या 1 लाख लीटर पानी लेके, वो कितने घर को देगा? अब कुछ शहर, कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ सोसाइटी बनी हुई, तो 8 फ्लोर 9 फ्लोर। अब 9 फ्लोर अगर कोई बना हुआ है तो ऑब्वियसली 9 फैमिली तो होगी। एक आदमी को औसतन कितने लीटर पानी चाहिए होगा? 200 लीटर 400 लीटर, कितना एवरेज कंजम्पशन ऑफ द वाटर पर पीपल? एक आदमी को एक दिन कितना लीटर पानी? 400 लीटर है ना? 4 लीटर अरे तू नहाना नहीं है, कपड़े नहीं धोना, रोटी नहीं खाना, खाना नहीं बनाएगा। एवरेज मतलब अगर आप 4 लोग रहते हैं तो वो अलग बात है, आपके हिस्से का पानी आपकी माँ यूज कर लेती है क्योंकि आपके कपड़े धुलती है, वो आपके लिए खाना बनाती है, वो तो आएगा तो आपके हिस्से में एटलीस्ट। तो कितना पानी वहां से चला, कितने लोगों तक पहुंचा, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो सारा का सारा मैपिंग हुआ और ये देखा गया कि आपको जो वाटर वहां से आ रहा है क्या सच में सही जगह गया है, और जिस जगह गया है उसको अगले दिन कब जाना है। अभी मैंने देखा न्यूज में आया कुछ लोग सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, कोविड पेशेंट खुद सिलेंडर लेके जा रहा है। तो जिसके घर ये बोला जाता है कुछ एरिया में पानी नहीं आएगा तो पानी की अभी सुबह भी बनाएंगे, शाम को बनाएंगे, और घर के उनके अंदर ही देखा बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां होती है वो नीचे वो बनवा लेते हैं, पानी का टैंक बनवा लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं और उसके अंदर भर लेते हैं और वहां से एमएलए जो उनका वार्ड मेंबर होता है वो मैसेज कर देता है सुबह भाई पानी टैंकर ले जाना। तो बहुत सारा जो अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही थी उस पर कंट्रोल करवाया और वो डेटा देने के बाद फिर जल बोर्ड को देते हो गया हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब ऑब्वियस सी बात है जो थोड़ा रसूख वाला आदमी जिसकी पहुंच है उसका काम तो हो जाता है, परेशान कौन होता है? हमारे और आप ऐसे लोग जिनके कहीं कोई कनेक्शन नहीं, राइट? तो कैसे वो ट्रैक हो, कहाँ आया, कितनी देर आया, कितनी देर में गया, कितना लीटर पानी, सारा का सारा दिल्ली जल बोर्ड में तो जीआईएस यूज करता है। अब सोचना जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वो जीपीएस का यूज कर रहा है, जीआईएस का यूज कर रहा है, मैप का यूज कर रहा है। आप एक रिपोर्ट बनाइए, मुझे लगता है कि हर वार्ड में एक जल बोर्ड है, हर एक वार्ड में कैसे होता है, जोन वाइज होता है सर। आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप बताओ रिपोर्ट, जाओ, डेफिनेटली आपको चांस देगा। हम लोग जो एग्जांपल बताता हूँ आपको, इंडस्ट्री आपको जॉब क्यों दे, बहुत सिंपल सी बात। मैं कहता हूँ आज के टाइम पे जो पाइपलाइन बनाने वाले, पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियां हैं, नेटवर्क वाली कंपनियां, रिलायंस जियो जैसी जो कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन लाइन वाली बिछाने वाली कंपनियां, आपको जॉब क्यों दे? उसके पीछे रीजन सी दिस। आगे आने वाले टाइम में जैसे आपके घर में नल का टैप लगा हुआ है, सेम वैसे कनेक्शन आगे छोड़ा जाएगा। कुछ जगह में स्टार्ट हो चुका है। ये वो लोकेशन है जहां पर हम वायर्स या केबल्स या नेटवर्क चैनल बिछा रहे हैं। कौन सी लोकेशन पे है, कहां पर है, क्या, क्योंकि इसके अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो बाय डिफॉल्ट ज्योग्राफी आ जाती है, लोकेशन जिसके अंदर आ जाता है। तो हम क्या करते थे, सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके उसको शॉर्टकट रास्ता बता देते, शॉर्ट रूट बताते। और वो जो केबल्स होती थी वो 1-1 मीटर केबल की जो कीमत होती थी वो कम से कम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, काफी मोटी केबल होती है वो भी, अगर अच्छी हो, कॉपर वाली हुई तो और ज्यादा महंगी हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 घंटे काम करके अगर एक बच्चा किसी संस्था का 1 मीटर वायर भी बचा लेता है, मतलब उसका नेटवर्क कैसे बताता है, सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके या ड्रोन इमेजरी का इस्तेमाल करके, कि उसका कॉस्ट बच सके। तो 1 मीटर वायर अगर रोज सेव करता है और एक महीने में 22 दिन काम करता है तो लगभग 20-22 लाख रुपए उसमें बचा लेगा कंपनी। अगर 22 लाख रुपए आप किसी संस्था का सेव कर रहे हो
तो 40-50 हजार रुपए देने में उसका क्या जाता है, बहुत आराम से चलेगा। तो बेसिक्स आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अपना करियर मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जहां पर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करके खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। उसके बाद करता रहो काम जितना करना। अगर आपके अंदर लीडिंग स्किल्स है, अगर आपके अंदर कुछ टेक्निकल स्किल्स है, तो धीरे धीरे चीजें बेसिक करो। और मैंने देखा अपनी आंखों से होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। आई हैव सीन गुड़गांव में एक कोविड इंडिया करके कंपनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा नॉर्मल स्टूडेंट, बिल्कुल नॉर्मल बीटेक करके आया हुआ था बच्चा, बस एक चीज अच्छा क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट का शौकीन था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने वहां अप्लाई कर दिया। उसने थोड़ा करके आया, पहले प्रोडक्शन में आया, प्रोडक्शन के बाद उसका माइंडसेट थोड़ा उसको मैनेजर पर ठीक लगा, उसने अपॉर्चुनिटी दे दी। आज फ्लोर इंचार्ज है, 250-300 लोगों को मैनेज करता है, उसको 2-3 फ्लोर मैनेज करने की मिले, 3-4 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और इंसेंटिव भी काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि टीम से काम कराने के लिए आपको अलग से पैसा लेती है। ये आपकी टीम है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप टीम को खिलाओ या खुद खाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको लिस्ट दिखा हुआ है, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हो, जो फाइनल लिस्ट होगी। अभी मैं देख रहा था जितने भी पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सारे के सारे मैपिंग होने की तैयारी, पूरे पोस्ट ऑफिस सब मैप हो जाएंगे। और वैसे तो ऑनलाइन ट्रैकिंग हो गई, तो दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, सारा का सारा डिजिटल इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है। उसका सब एक ऑब्जेक्टिव है कि सारा एसेट्स जो हमारा है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का, सबको डिजिटल कर दो, और ऐसे डिजिटल कर दो कि एक क्लिक में आपको पता लग जाए। जैसे आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे कटे, तुरंत इमीडिएट। उस लेवल तक का प्लान गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसका आइडिया बहुत, जिनको है कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, थॉट्स भी है बट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। उसके लिए मुझे लगता है कि ये हमने इलाहाबाद के लिए काम किया था। ये काम था बेसिकली, शायद आपको सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, उसका नाम था सॉइल हेल्थ कार्ड। लो सॉइल हेल्थ कार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट, लेकिन इसको इस लेवल पे, उसको माइक्रो लेवल पे ले गए वो लोग। माइक्रो लेवल पे मतलब अगर आप क्लिक करते हो तो किसी समय पे, किसी भी फाइल पे, तो आपको पता लग जाएगा कि किसका है। जैसे एक प्रोजेक्ट का एक पूरा पैच था, करीबन 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया था। ये देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे कंजेशन ज्यादा हो गया था, ट्रैफिक ज्यादा हो गया था, तो गवर्नमेंट ये बोला था कि आप इसको रोड को चौड़ा कर लीजिए, वाइडनिंग कर लीजिए। आ रहा है रोड वाइडनिंग हुई है। एक्जिस्टिंग जो ये रोड थी, अगर आप ध्यान से देखें, ये रोड है हमारी, ग्रीन जो गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट थोड़ा छोड़ देती है, करीबन 20 मीटर के आसपास था। अब इसको हमें 30 मीटर के अप्रॉक्स ले जाना था, तो 5 मीटर लेफ्ट साइड और 5 मीटर राइट साइड उनको पता करना था कि टाइप ऑफ लैंड, टोटल लैंड कितना एक्वायर करना पड़ता है। ये है लैंड एक्विजिशन प्लानिंग, लोग पढ़ते हैं, हाईवे वाला भी पढ़ता है, ज्योग्राफर भी पढ़ता है, और इसमें जियोलॉजिस्ट भी आते हैं। जियोलॉजिस्ट को मुझे तब पता चला वो क्यों जियोलॉजिस्ट आते हैं। इस एरिया में जो विड्थ होती है रोड की, या जब कभी ब्रिज बनने का टाइम आएगा, तो देखा जाता है कि जो पिलर लगेंगे, वो पिलर का वो जो सॉइल है कितना डाइजेस्ट कर पाएगी इसको। सॉइल भी अलग वैरायटी का होता है, आई डोंट नो कितना क्या होता है सॉइल में, बट वो देखते हैं कि उसमें कितना प्रेशर डाले कि वो रहे, अदरवाइज जो खराब हो सकती है। तो बड़े ब्रिज बनते हैं, वहां पर जो टेक्निकल सर्वे उसको बोलते हैं, तो वहां पर भी जियोलॉजिस्ट हायर होते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि ज्योग्राफर भी हायर हो रहा है, जियोलॉजिस्ट भी हायर हो रहा है, प्लानर भी हायर हो रहा है, इंजीनियर भी हायर हो रहा है, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सबको इंटीग्रेट कर लेती है, सबको इंटीग्रेट कर लेती है।
यहाँ पर उन्होंने बोला कि कैन फाइंड आउट टोटल कितने लैंड और किसके किसके घर तोड़े जाएंगे। और बाद में एक और इसमें करप्शन पकड़ा हम लोगों ने, पकड़ा ये ऐसे लोग इंडिया में बहुत है जो अपने फैमिली मेंबर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इमीडिएटली उनको पता लगा कि रोड चौड़ा होना है, किसी अपने ढंग के आदमी को बोला कि 25-50 लाख रुपए लगा दो, ये जमीन ले लो, 50 लाख लगाओ तो 2 करोड़ मिल जाएंगे। कैसे? गवर्नमेंट वहां पे रोड काम करने वाली है, आप लगा दो पैसे। और उससे भी बड़ी चीज, अगर किसी को उसका ऑलरेडी मेरा जमीन तो है वो रोड पे किनारे, तो लगा एक काम करो, टपरी बना दो छोटा सा, चाय की दुकान खोल दो और उसका फोटो ले लो और बोलो मेरी सारी रोजी रोटी यही है। तो नॉर्मल टेम्परेरी 4 पिलर लगाए लकड़ी के हैं और घास फूस लगाई और बिस्कुट की रख लिया, तो 400 रुपए का फोटो लिया और उनको दे देते भाई मेरा दुकान है और मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरा सारा सोर्स चाहिए, अगर इसको तोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पॉइंट हमने क्या किया, सेटेलाइट ठीक 2 महीने पहले लेंगे खाली कर दिया सेटेलाइट इमेजरी को बैक डेट किया हमने। उस बैक डेट ऑप्शन आता है, लोग बैक डेट पे ले जाकर देखा 2 महीने पहले खाली पड़ा था, तो बोले आगे कराओ, तुमने पैसे लिए, किसने प्रूफ किए और सर्वे करने को गया था और किसने प्रूफ किया, पकड़ लिया तुमने। गेट माय पॉइंट मैडम सही। तो छोटे छोटे डिसीजंस पे गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बचा, तो उसका दिमाग खुला, उसने कहा क्यों नहीं इंप्लीमेंट करें रेलवे में भी ट्रांसमिशन। अभी मैं अदानी के साथ एक काम ट्रांसमिशन लाइन का काम था, करीबन 200 गांव 200 विलेज उधर का एरिया है। अभी जहाँ का वो 307 जहाँ बंद हुआ है ऊपर का एरिया, कौन सी बंद हुई इधारा में, बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट ने किया, कौन सा काम 370, वहां वाले एरिया में भी करंट पहुंचाने का काम चल रहा है। तो करंट वायर बिछाने के लिए कितने विलेज से होकर वो बाहर जाएगा, एसटी लाइन पहुंची जाएगी, एटी लाइन पहुंची जाएगी वहां पर, और कितने उसके लिए सुटेबल लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है। एक बहुत अच्छी चीज आपको घटना बताता हूँ जो मैंने देखा हुआ है, जहां एसटी हाई टेंशन लाइन जाती है, गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि हाई टेंशन लाइन के दोनों तरफ कम से कम 50 मीटर पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए। बारिश के टाइम पर सिर्फ एक तो उससे बीमारी होती है, क्योंकि आप किसी ट्रांसफार्मर के सामने से गुजरो तो एक आवाज आती है, मतलब सनसन की आवाज आती है, तो जो लोग आस-पास के रहते हैं उनके दिमाग, जैसे ऐसा समझो कि रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लोगों को नींद नहीं आती किसी दूसरे घर में जाते हो, क्योंकि वहां शांति है, उनको सडन आवाज। तो वो कह रहे थे कि ट्रैक जो है उसका, टावर का जो ट्रैक है उसके 50 मीटर के रेंज में किसी का घर न हो, वो भी गया रेलवे लाइन में चला गया, सॉरी टावर में घुस गया। एक बुढ़िया आई और कोई मंत्री मिनिस्टर थे, जैसे ही कार से उतरे उनके पैर गिर गई, उसने कहा अदानी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, जहां मेरा घर था वही उसने टावर निकाल दिया, अब मैं मर जाऊंगी और मुझे पैसे दो। अब 1500 लोगों के सामने कोई किसी मिनिस्टर के पैर में अगर गिर जाए तो मामला थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। उसको बोला गया हाँ हाँ तुम्हारे साथ सब कुछ होगा, बाद में इन्वेस्टिगेट करके पता चला वो झूठ बोल रही है। अब वो वायर बनने के बाद उसने घर बनाया, मतलब करंट जब जा चुका उसके बाद उसने अपना घर बना लिया, तो उसको कोई उसका हानि का क्या दोष है। तो ऐसे बहुत सारे केस तो सुलटाने में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आप उसको ट्रैक बता सकते हो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ट्रैक बता सकते हो, सर यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, उसके अंदर एलिवेशन भी आता है, आप सैटेलाइट यूज करके हाइट भी देख सकते हैं कि आपको प्रॉपर टावर एलिवेशन है। ऐसे ही एक और बहुत अच्छा एरिया हमारे पास गुयाना, इसमें है शायद अगर मैं दिखाऊं, गुयाना में एक see this, ये हमारे फ्रेंड है जो उधर रहते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था हमें। गुयाना में हुआ क्या, हर आदमी को रात को समुद्र के किनारे मतलब घर पे चढ़ के चाय पीने के मतलब चेले ड्यूटी लेना है, तो उस केस में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया से वहां जमीन लेना चालू कर दी उस एरिया में, और सीन ये हो गया बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा इतना डेंस हो गया, देखो नहीं डेंसिटी। और अभी भी यहाँ केस डीपी चालू है, ये जो थोड़ी बहुत लैंड पड़ी है ना, ये
आसमानी रेट है यहाँ पे, क्योंकि ये सीन ऐसा है, इसके बाद पूरा समुद्र है, देख रहे हैं आप। 8-10 साल लगा, 10 साल बहुत कम होता है। तब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है परसों आया था इधर, जबकि आया मुझे कई साल हो गए। टाइम तो यूं जाता है। यहाँ पर उन्होंने हमें बोला था कि सर ये जो थोड़ी बहुत लैंड बची है ये सब बिक जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अचानक से, क्योंकि समुद्र किनारे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर एसी कंपलसरी होता है उस एरिया में, तो सारे लोगों ने अपने बिजनेस खड़े करके पूरे एसी लगा लिए। तो एसी ज्यादा लगने की वजह से पावर कंजप्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि पावर ग्रिड ठप पड़ने लगे। आयरन टावर खत्म, आयरन जो टावर था ट्रांसफार्मर सब जलना चालू हो गए। तो उन्होंने बोला वहां करंट कैसे पहुंचाए, कुछ लोगों से तो करंट कैसे जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी बन चुकी है, लोगों ने पैसा लगा दिया है, उसको खराब नहीं कर सकते हम। तो फिर उन्होंने हमें ट्रैक बताया कि सर यहाँ पे ऑलरेडी एक कोई नदी जा रही है, नदी की दोनों तरफ आप ये जो ट्रैक बना हुआ है ट्रांसमिशन लाइन का है, कि आप यहाँ बड़े बड़े को टावर लगाइए हाई ट्रांसमिशन वाले, और कहीं से यहाँ करंट पहुंचाइए। लेकिन आप ये ध्यान रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टावर लगाने में एक चीज बहुत ध्यान रखा जाता है। कई दफा मैंने रील्स में भी देखा है, इंस्टा में देखा है, कुछ किसान जो खेती करने जाते हैं, अगर वहां बारिश के टाइम को करंट में उनकी मौत हो जाती है, करंट लगने से। कई दफा मैंने देखा है, न्यूज में आया है। और जानवर भी कभी कभी मर जाते हैं। पानी अगर भरा हुआ है और वायर अगर टच कर गई मतलब उस पॉन्ड को, तो भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताना था कि यहाँ पे कहाँ कहाँ टावर लगाया जा सकते हैं। टावर की लोकेशन बताने के लिए स्लोप वगैरह यूज किया उन्होंने। दो मेजर फैक्टर उन्होंने मुझे बोले थे। एक तो ये बोला था कि वाटर लॉग एरिया नहीं होना चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए वहाँ पे। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आप कोशिश करो एलिवेटेड एरिया हो जहाँ पर हम टावर लगाएं, और अगर एलिवेटेड एरिया नहीं भी है तो सुटेबल लोकेशन बताना जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का लॉस ना हो। आप हम ऑर्गेनाइज कर दो, वो जमीन हम खरीद लेंगे, उसको महीने का कुछ दे देंगे या कोई जॉब दे देंगे, उसको हम सीमेंट का लगा के थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो पूरी लोकेशन थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, आप जीआईएस को बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको जीआईएस आता है। तो अगर आपके सिलेबस में है जीआईएस, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में किसी भी लेवल पे, अच्छे से पढ़ो, जी भर के पढ़ो। पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि 99 नंबर लाने इसलिए पढ़ना, उसको रियल लाइफ में अगर यूज करो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपका करियर हो सकता है। मैं राइट कर रहा हूँ? ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? इन्फॉर्मेटिव था? ये बात मेरे डायरेक्टर को कैसे पता चली? मैं जिन लोगों के सामने बैठा था, आप एक काम करो, एक मिनट का काम है, जल्दी से मोबाइल फोन निकालो, गूगल पे है, यहाँ पे आप लिखते हो उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखो NIGMP फाउंडेशन, NIGMP फाउंडेशन जब आप जाएंगे इधर राइट साइड पर लेकर NIGMP फाउंडेशन में आप डालोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है रिव्यू का। दिख रहा है आपको रिव्यू? मिल गया रिव्यू? आप अपने हिसाब से दिल पे पत्थर रख के 5 दे दीजिए। कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं, ऐसा था एक्सीलेंट जो भी। और इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है, फोटो वगैरह भी अटैच कर सकते हो आप। इसमें जो ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें फोटो ऑप्शन आता है। अपने सेशन का, अपने फ्रेंड का, इवेंट का फोटो टैग कर दीजिए। हमारे डायरेक्टर को पता लग जाएगा आप कुछ अच्छी जगह गए थे क्या, आज कौन से कॉलेज में थे। तो रिव्यू भी आप डाल सकते हैं, खराब मत कीजिएगा, वर्ड मत डालिएगा, बाकी आपकी चॉइस। नाउ अपॉर्चुनिटीज में जल्दी 20-25 सेकंड में करो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको क्लोज कर दो। आई थिंक ज्यादा टाइम ले लिया आप सबका, 1 घंटे के प्लान था, शायद ज्यादा हो गया। Now I'm going to show you some organizations where you can apply. There is some multinational companies, some domestic organizations, some semi-government organizations, some international organizations also. So और कुछ for example, each and every state have state remote sensing centers. You can apply there. They are looking at kind of people who have good knowledge, who have good skills for execution of agriculture project, water project, forest project, transport project, network project, health project, and also बहुत सारे projects हैं। तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, but make sure उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो किसको हायर करता है। तो अगर आप अपने सीवी में कुछ ऐसे मोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के नाम लिख रखे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप उनको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप
गूगल पे जाना, नेट नहीं चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल लिखो GIS जॉब्स इन दिल्ली एनसीआर, बहुत सिंपल। आप जितने लोग बैठे हो ना उससे ज्यादा वैकेंसी वहाँ है, यू कैन चेक, अभी भी देख सकते हो। तो आप देखिए कि वहां पर बैठने के लिए, वहां इंटरव्यू देने के लिए वो आपसे क्या मांगेंगे, क्या स्किल्स मांगेंगे। तो सिंपल से बोलते हैं रिमोट सेंसिंग गैस का नॉलेज होना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल करना उसको आना चाहिए। आप मेरे जाने के बाद भी रविंद्रनाथ तिवारी का आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सीधा है डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी। मैं उसमें जॉब्स डालता हूँ, प्लेसमेंट डालता हूँ, टेक्नोलॉजी अपडेट्स डालता हूँ। मैं ये नहीं कहूँ मेरे कहने से जुड़ो, तुम्हारा बिल करे तब जुड़ना। आपको इस तरीके का अपडेट्स रोज, मेरी प्रैक्टिस रहती है, मैं डेली कुछ कुछ डालूं, तो वहां से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ताकि अगर इवेंट रोज ना हो तो कम से 2 दिन 4 दिन बाद आपको ये पता लग जाए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ इंटरव्यू देने में जा सकते हैं। हो सकता है मल्टीनेशनल हो सकता है डोमेस्टिक हो सकता है। अभी हमारी एक फ्रेंड है जर्मनी में है, एक स्टूडेंट है हमारी, वो अपूर्वा तिवारी, वो यहीं से किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से अपूर्वा करके शायद एक ही है, वो मैनचेस्टर में है। तो इसके पहले वो WSP में काम कर रही थी, ठीक ठाक पैकेज मिल गया, मैनचेस्टर निकल गई। तो बहुत सारे आपके इसी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में भी हैं इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो आप लिखिए GIS जॉब्स इन दिल्ली एनसीआर, GIS जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, चेन्नई, जहां आपको लिखना है डेफिनेटली आपको ऑप्शंस मिलेगा। बस आप लोग देख लीजिएगा उसके स्किल्स क्या है। एक चीज और लास्ट, जो लोग फाइनल ईयर में उनकी बात कर रहा हूँ, आप मास्टर्स जरूर करना। मास्टर्स के साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हो, हम लोग 1 साल का डिप्लोमा भी ऑफर करते हैं विद 100% प्लेसमेंट। 1 साल के प्रोग्राम में 8 महीना हम सिखाते हैं, 8 मंथ हम ट्रेनिंग देते हैं, लास्ट के 4 मंथ हम आपको इंडस्ट्री भेज देते हैं। जहां पे इंडस्ट्री में जाओगे वहां आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो पैसा आपने सीखने के लिए लगा रखा है वो आपको रिटर्न हो जाएगा पूरा। अगर हमने आपसे 80,000 लिए तो आपके 80,000 रिटर्न, तो एक जॉब मिलेगी आपको, एक डिप्लोमा मिलेगा आपको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने 80,000 दिए थे और 80,000 आपको रिटर्न मिला। आई थिंक इट्स गुड डील है या नहीं? क्या कहती पब्लिक? ग्रेट डील, डन। थैंक्स टू ऑल, आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने टाइम दिया। Question, yeah, please ask. First of all, sir, good morning. Good morning, sir. My name is Lakshmi. I'm studying in BA program. I'm in Germany. And in our curriculum, we don't like GIS or remote sensing program. BA program specifically. So I'm studying it on my own from YouTube and different sources. But I'm planning to do masters in geoinformatics after my graduation. So I have 2 questions for you. But first of all, please give me a complete roadmap. How should I start my geoinformatics journey, and how should I grab my first project? See, NIJP फाउंडेशन की खास बात ये रही है कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन प्रोजेक्ट्स में हम आपको उसको बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। 3 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद जैसे ही 4 मंथ में कैंडिडेट जाएगा, हम उसके साथ, जैसे भी कल में हरियाणा में हमारा एक सेंटर है स्काईलाइन, वहां पर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप मुझे हर डिस्ट्रिक्ट का वो सारी रोड्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड है, समझ लग क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क, ये निकालो, दैट इज प्रोजेक्ट। ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क इन योर डिस्ट्रिक्ट। पूरे स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नहीं होता है, और ये प्रोजेक्ट हमने उनको दिया हुआ है, हम नाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट। सो इस तरीके का रिपोर्ट बना के जब एनएचआई के पास जाएगा तो एनएचआई ये करता है, एनएचआई को ये करना होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्कीम कहां अप्लाई हो चुकी है, कहां नहीं हुई है, जहां हुई है वहां क्या है, जहां नहीं हुआ कैसे होगा। इस टाइप का लाइव प्रोजेक्ट हम लोग देते हैं 1 साल के प्रोग्राम में। उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट कर लिया है, देन उसके बाद हम उसको सीधा मास्टर्स ऑफर करते हैं। पहला प्रायोरिटी एनआईएमपी फाउंडेशन का है कि स्किल देके उसको जॉब दो, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनआईएमपी। उसको जॉब दे दो, घर से पैसे लेने बंद करो, अपने से पैसा कमाएगा, फिर मास्टर्स कर, एमटेक कर, पीएचडी कर, कोई दिक्कत नहीं है। माँ आपको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा आपको बड़ा होगा कमाए, शायद ही ऐसा कोई बोले अपने बेटा। अब तो ऐसा है शादी के बाद कि उसके बच्चे हो तो उसको भी चेक कर दादा करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत जाती हो जाती है बेचारों बूढ़ों के साथ। आप इनफ हो, मैच्योर हो, आप खुद अपने आप खुद करो, उनको बोलो कि सर अब मैं नहीं लूंगा, मैं ग्रेजुएशन हो गया मेरा, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, ठीक है 8 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं मास्टर्स भी करूंगा, इसी टेक्नोलॉजी में करूंगा। एमटेक मास्टर जरूर करना, क्योंकि वो आपको प्रमोशन में काम आएगा, वो आपको हाई लेवल कम्युनिकेशन में काम आएगा।
राइट? डिप्लोमा हो गया, जॉब हो गई, मास्टर्स भी हो गया, और अच्छा करना है पीएचडी करो। मेरा खुद का पीएचडी स्टूडेंट है, यू कांट बिलीव 2019 में मैं नॉर्मल मतलब 2007 का मेरा पास आउट था मास्टर्स इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स। आफ्टर दैट मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, वैसे मैं किसी सेशन में बैठ के काम कर रहा था, मैं किसी साहब के से बातचीत हो गई वहां पीएचडी, तो ये प्रोजेक्ट आज मैं अपने पीएचडी प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रहा हूं। हाईवे में जो काम करते थे मैं तो काम करते करते मास्टर पीएचडी डॉक्टरेट भी हो गई। अब ऐसे अगर डॉक्टरेट की अप्लाई कर रहा होता तो कहीं कुछ कर रहा होता किसी कॉलेज में, तो आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। You got the answer? आप मास्टर्स आप ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, डिप्लोमा कीजिए, उसके बाद जॉब कीजिए, और जॉब के साथ साथ मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स के बाद एमफिल कीजिए, जो बच्चे खुल के जियो। आप जो करो जो तुम्हें करना है, मेरे कहने में मत करो, या पड़ोसी कहने में मत करो, टीचर कहने में मत करो, अपना भी एक्सपीरियंस लगाओ। टीचर वैसे टीचर ही ऐसा आदमी है और बाप फादर एक ऐसा आदमी है जो आपको अपने से बड़ा फील करता है। आप अपना पर्स पड़ोसी के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चा छोड़ देंगे टीचर के पास, क्योंकि उसको पता है टेक केयर कर लेगा, राइट? तो आप कितने बड़े हो जाओ वो तो बच्चे और माँ बाप के लिए। तो थैंक्स टू योर टीचर्स, आप हमेशा इनको रिगार्ड करें। आप इनसे कुछ लोग टीचर हमेशा रिटायर हो जाए और उससे मिलके तभी बोलेगा हाँ क्या चल रहा है, आगे क्या करना है, पूछ लेगा ऐसे एक बार में। और अगर मेरे साथ ऐसा होता है, पुराने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ वैकेंसी निकली अप्लाई करना है, और सर 60 मिल रहे हैं 80 मिले हैं बताना, ठीक। तो फोन आ रहा है, मुझे पता रहता है उसको उस कंपनी में दिक्कत हो रही है, उसको स्विच करना होगा, इसलिए फोन कर रहा है। दैट इज गुड। थैंक्स अगेन। मैं ज्यादा टाइम मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मैं नहीं बैठ सकता, आपके पैसा से बहुत बहुत थैंक यू।